ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج پھر زارا الجھی ہوئی زندگی کو سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی ایک قید خانے کی مانند لگتی تھی۔ وہ آزادی کی زندگی جینا چاہتی تھی اور کھل کر سانس لینا چاہتی تھی، جو کہ اس کے نصیبوں میں نہیں تھا۔ زارا شاید مرتسم کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، یا پھر مرتسم نے اس پر دباؤ رکھا ہوا تھا۔ شاید وہ زارا کو اس کے ماضی کے ساتھ الجھائے رکھنے کی کوشش میں تھا۔ مرتسم اور زارا کے درمیان بظاہر تو محبت کا رشتہ تھا، مگر وہ محبت کا رشتہ کہیں نہ کہیں روش اختیار کیے ہوئے تھا۔ آج زارا پھر سے مرتسم کے غلط رویے کا شکار بنی ہوئی لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ زارا نے ساری رات کانٹوں پر گزار دی تھی، اور اسی بات کا غصہ وہ اپنے دل و دماغ پر سوار کیے ہوئے تھی۔ صبح ہوتے ہی مرتسم نے زارا کو حکم دیا تھا کہ شام کو گھر میں ایک گیٹ ٹوگیدر ہے، میرے سب دوست عزیز جمع ہوں گے، اچھے سے تیار ہو کر سب کے سامنے آئے۔ مرتسم زارا سے کہنے لگا، مجھے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں چاہیے۔ وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آفس کے لیے نکل گیا تھا، اور زارا رات کا غصہ دل میں لیے ہوئے مرتسم کے ہر حکم کی تعمیل نہ کرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ زارا بہت تکلیف میں تھی۔ وہ مرتسم سے اس کے کیے گئے ظلموں کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ بے صبری سے شام ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ مرتسم کے حکم سے گھر کو بہت خوبصورت انداز میں سجایا جا رہا تھا، اور سب نوکر چاکر شام کی پارٹی کا اہتمام کرتے نظر آ رہے تھے۔ زارا اپنے کمرے میں بیٹھی شام ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہت گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تبھی اسے اپنے ماضی کی کچھ تلخ یادوں نے آ گھیرا۔ وہ اس سوچ میں تھی کہ مرتسم سے کیسے بدلہ لیا جائے۔ یہی سوچتے ہوئے زارا اپنے بستر سے اٹھی اور اپنا ایک پرانا بکسا کھول کر کچھ پرانے کپڑے نکالنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کپڑے زیب تن کرتی، ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی، اور یہ آواز مرتسم کی تھی، جو اسے محبت بھرے انداز میں نیچے بلا رہا تھا، کیونکہ سب لوگ آہستہ آہستہ ہال میں جمع ہونے لگے تھے۔ سب لوگوں کو اکٹھا ہوتے دیکھ کر مرتسم کی نظریں اب زارا کو دیکھنے کی منتظر تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد سارے گھر کی لائٹ مدھم سی ہونے لگی۔ یہ زارا کے پلان کا حصہ تھا۔ صرف سیڑھیوں پر چلتی ہوئی لائٹ زارا کی خوبصورتی کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ سب کی نظر سیڑھیوں پر تھی۔ زارا اپنی سلیو لیس شرٹ میں ایک بولڈ لک کے ساتھ سیڑھیاں اترتے نیچے کی طرف آنے لگی۔ زارا ہر ایک کی نظروں کا مرکز بنی پوری محفل پر اپنے بولڈ لک کے ساتھ غضب ڈھا رہی تھی۔ محفل میں بیٹھے ہر شخص کو زارا کی ایک نظر دیوانہ کر رہی تھی۔ ان حالات میں مرتسم زارا کو دیکھتے ہوئے بہت تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ مرتسم درد محسوس کرتا ہوا زارا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ زارا رات کا غصہ دل میں لیے اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارا اپنی حد پار کرتے ہوئے ہال میں پہنچ چکی تھی۔ تبھی اسے غصے سے دیکھتے ہوئے مرتسم نے کسی سے فون پر بات کی۔ کچھ ہی پل میں اچانک سے لائٹ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور پورے گھر کی لائٹ بند ہو گئی۔ اس دوران کسی نے پھرتی سے زارا کو بے ہوش کیا اور پھر کسی چھلاوے کی طرح اسے اپنے کندھوں پر ڈال کر غائب ہو گیا۔ زارا کی آنکھ اگلے دن دوپہر میں جا کر کھلی تھی، تو وہ اپنا لباس دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر اپنے بستر سے اٹھی ہی تھی کہ ساتھ لیٹے مرتسم پر اس کی نظر پڑی، اور اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی ہی تھی کہ مرتسم نے اسے زور سے پکڑتے اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا کہ دوبارہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا، کیونکہ جب تک تم میرے نکاح میں ہو میں تمہیں دوبارہ ایسے نہ دیکھوں۔ اگر تم نے پھر ایسا کیا تو میں تمہاری ساری حسرتیں پوری کرنے کے لیے تمہیں تمہاری اصل جگہ پہنچا دوں گا۔ زارا لاہور کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ایک غریب لڑکی تھی۔ زارا کے ابا کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے۔
ज़ारा के अब्बा को उठना बैठना गलत और आवारा लोगों में था। यही वजह थी कि वो किसी एक जगह पर टिक कर काम नहीं करते थे। ज़ारा का बाप नशई होने के साथ साथ लाहौर शहर की बदनाम गलियों में जाने का भी आदी था। वो अपनी गलत हरकतों की वजह से अक्सर घर में जुल्म सितम करता नजर आता। ज़ारा बहुत छोटी सी थी जब उसने अपने अब्बा को ऐसे देखा था। उसके अब्बा का सलूक घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो हर वक्त अपनी बीवी को मारता पीटता नजर आता। ज़ारा अपने अब्बा से शदीद नफरत करती थी। बचपन से ही उसने अपने बाप को अपनी माँ के ऊपर जुल्म ढाते देखा था। इसीलिए वो अपने बाप से डरी डरी और सहमी सहमी रहती थी। उसके दिल में बैठा हुआ था ये डर कि बड़े होने के साथ साथ नफरत में तब्दील होता चला गया था। ज़ारा की माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। वो मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल 2 वक्त का खाना पूरा करती, जबकि ज़ारा का जालिम बाप उसकी माँ को मार पीट कर उससे अक्सर पैसे छीन कर ले जाता। ज़ारा की माँ अपने शौहर के जुल्म सितम से बहुत तंग आ चुकी थी। उसने बहुत दफ़ा उस जालिम आदमी से अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की, मगर वो इस कदर बेहिस इंसान था जो ना तो अपनी बीवी और बेटी को छोड़ कर जाता था और ना ही उनको सुकून से जीने देता था। बचपन से देखे गए जुल्मों ने ज़ारा के दिमाग पर इस कदर गहरा असर छोड़ा कि ज़ारा हल्की सी आहट पर ही डर जाती थी और ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगती थी। ज़ारा की माँ उसकी हालत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी। उसे अपनी बेटी की परेशानी हर वक्त खाए जाती। ज़ारा का बाप एक अयाश किस्म का आदमी था जो कि इंसान कहलाने के काबिल नहीं था। वो अपनी गलत हरकतों की वजह से पूरे गांव में बदनाम हो चुका था। गांव में से कोई भी ज़ारा के घर नहीं जाता था, क्योंकि सब जानते थे कि उसका बाप एक अयाश आदमी है और कोई भी उसके घर जाना अच्छा नहीं समझता था। ज़ारा की माँ सारा दिन मेहनत मजदूरी करती और अपनी नन्ही सी बच्ची को घर में तने तनहा छोड़ कर जाती थी। काम करते हुए भी उसकी माँ की सोच और ध्यान अपनी बेटी पर ही अटका रहता। जिन घरों में वो काम किया करती थी उन घरों में बच्ची लाने की इजाज़त नहीं थी और काम करना उसकी मजबूरी थी। इसीलिए वो तड़पती हुई ना चाहते हुए भी अपनी बच्ची को छोड़ कर जाया करती। एक दिन वो काम से वापस घर आ रही थी। जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खोला तो उसने अपनी बच्ची को रोते बिलखते देखा। वो एक माँ थी। अपनी बच्ची को ऐसी हालत में देखते हुए वो तड़प उठी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने अपनी सहेली को घर के अंदर दाखिल होते देखा। उसकी सहेली ने जब इसे रोने की वजह पूछी तो ज़ारा की माँ ने बताया कि आज मैंने अपनी बच्ची को मौत के मुंह से बचाया है। वो बताने लगी कि मैं काम करने गई हुई थी और बच्ची घर पर सो रही थी। आज न जाने ये कैसे जल्दी उठ गई। ये रोती हुई बाहर आ गई थी और उसने हाथ में बिजली की तार पकड़ रखी थी। अगर मैं कुछ देर और ना आती तो शायद आज मेरी बच्ची मेरी आंखों के सामने सही सलामत ना होती। ज़ारा की माँ अपनी सहेली से अपना दुख कहते हुए ज़ारो कतार रोने लगी। तभी उसने ज़ारा की माँ को तसल्ली देते कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम दोबारा ऐसी गलती मत करना। जिसके लिए तुम कमा रही हो, अगर उसी को कुछ हो जाता तो तुम्हारी ये कमाई किस काम की थी? तुम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। तभी ज़ारा की माँ ने रोते हुए कहा कि जिन घरों में मैं काम करती हूँ वो लोग बच्ची को लाने की इजाज़त नहीं देते। तुम ऐसे किसके सहारे छोड़ो? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि इसका बाप किस फितरत का मालिक है। तभी उसकी सहेली ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम सुबह काम पर जाते हुए ज़ारा को मेरे पास छोड़ जाया करना, मैं इसको संभाल लिया करूँगी। जहाँ मेरी बच्ची पलती है ज़ारा भी उसके साथ रह लिया करेगी। ज़ारा की माँ अपनी सहेली की बात सुनते हुए खुश हो गई थी। अब ज़ारा की माँ सुकून में आ गई थी। उसे किसी ऐसे ही सहारे की ज़रूरत थी जो इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देता। अब वो रोज़ाना काम पर जाते हुए ज़ारा को अपनी सहेली के घर छोड़ जाया करती और साथ कुछ खाने पीने का सामान भी दे दिया करती और वापस आकर अपनी सहेली के घर से ही ज़ारा को ले लेती थी। ज़ारा की माँ का जहन अब काफ़ी हद तक मुतमईन था। अब उसे कोई परेशानी न थी। ज़ारा के बाप को गए हुए कई माह गुजर गए थे।
वो न जाने कहाँ चला गया था। देखते ही देखते ये महीने सालों में बदलने लगे। 2 साल गुजर गए। ज़ारा का बाप लौटकर वापस नहीं आया था। उसकी माँ ने ये तसल्ली कर ली थी कि नशे की हालत में किसी गाड़ी के नीचे आकर मर गया होगा। वो शुक्र अदा करती थी कि ऐसे घटिया इंसान से उसकी जान छूट चुकी थी, मगर वो नहीं जानती थी कि बुराई आसानी से जान नहीं छोड़ती। 2 साल गुजरे, ज़ारा बड़ी हो गई। जवानी में कदम रखते ही ज़ारा ने सबको हैरान करके रख दिया, क्योंकि ज़ारा बहुत ही खूबसूरत, चिट्टा गोरा रंग, चेहरे पर मोटी मोटी आंखें उसकी खूबसूरती को नुमाया करती थी। ज़ारा के लंबे घने बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते थे। अब ज़ारा अपने घर की देखभाल करती और ज़ारा की माँ अपना काम बेफिक्री से सरंजाम देती। 2 साल गुजर गए थे। ज़ारा की माँ ने अपने शौहर के होने या ना होने का गुमान तक भी अपने दिल से निकाल दिया था। एक सुबह ज़ारा की माँ काम पर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। जब ज़ारा ने अपनी अम्मा से कहा कि नाश्ता करके जाइएगा, सारा दिन आप काम में मसरूफ़ रहती हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, इसीलिए आज से आप नाश्ता करके जाया करेंगी। अभी माँ बेटी एक दूसरे पर अपनी मोहब्बत निछावर कर ही रही थी कि दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक ने उनके दिल को दहला कर रख दिया। ज़ारा और उसकी माँ बुरी तरह से डर गईं। दस्तक इतनी ज़ोरदार अंदाज में की गई थी कि वो दोनों सहम कर रह गई थी। तभी ज़ारा की माँ हिम्मत करते हुए दरवाज़ा खोलने लगी। वो अपनी बेटी ज़ारा को तसल्ली दे रही थी कि परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। तभी उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें पथरा सी गई थीं। दरवाजे पर कोई और नहीं, उसका शौहर खड़ा था, जो बुरी तरह से ज़ख्मी था। जैसे ही ज़ारा की माँ ने दरवाज़ा खोला तो उसका शौहर उसके कदमों में गिरते ही बेहोश हो गया। ज़ारा डरी सहमी दूर से ही अपने बाप को देख रही थी। ज़ारा की माँ ने ज़ारा की मदद से अपने शौहर को उठाकर बिस्तर पर डालते हुए ज़ारा से कहा कि मैं काम पर जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ज़ारा बहुत खौफज़दा हो गई थी। वो अपनी माँ के साथ लगकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे ऐसे जल्लाद के हवाले करके मत जाओ, आज आप काम से छुट्टी कर लो, और जब तक आपको अब्बा के इरादों का पता नहीं चलता आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, या फिर मुझे भी अपने साथ ही काम पर ले जाएं। ज़ारा की माँ मजबूर खड़ी एक गहरी सोच में चली गई। वो सोचने लगी कि अगर मैंने छुट्टी की तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी, और अगर मैं ज़ारा को अकेला छोड़कर जाती हूँ तो ज़ारा परेशान रहेगी। उसने ज़ारा को भी अपने साथ ले जाने का फ़ैसला किया और ज़ारा को अपने साथ ले जाते हुए घर को बाहर से बंद करके काम पर चली गई। दोनों माँ बेटियाँ तसल्ली से अपना काम करके जब घर वापस लौटी तो घर में अजीबो गरीब किस्म का शोर शराबा था। चीखों पुकार सुनकर वो दोनों परेशान होने लगी। जल्दी से ज़ारा की माँ ने घर का दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर उसने अदन कदम रखा तो बहुत ही ज़ोर से एक चीज़ आकर ज़ारा की माँ के माथे पर लगी और उसके माथे से खून बहने लगा। ज़ारा अपनी माँ के माथे से निकलता खून देखकर बहुत घबरा गई थी। वो ऊंची ऊंची रोते हुए अपनी माँ से कहने लगी कि आपको बहुत ज़ोर से लगी है। वो घर के अंदर दाखिल होते हुए अपने बाप को झंझोड़ने लगी थी और कहने लगी थी, आप पागल हो गए हैं, तुम हमेशा से मेरी माँ पर जुल्म करते आए हो। हमने तो समझा था कि कहीं मर गए होगे, लेकिन तुम तो फिर अज़ाबे इलाही बनकर हम पर नाजिल हो गए हो। ज़ारा रोते हुए कुछ भी बोले जा रही थी। उसका बाप बहुत गुस्से में था। उसने गुस्से से ज़ारा को धक्का देते हुए कहा कि अपनी माँ की ज़बान बोलने लगी हो, इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने बाप का गिरेबान पकड़ सको। ज़ारा गुस्से से उठी और अपने बाप से कहने लगी कि कैसा बाप, कौन सा बाप, तुम में बाप वाली कोई बात है? आज तक तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, सिवाय हमें तकलीफ़ देने के? तुम्हारे पास हमारे लिए है ही क्या? हम अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रही थी कि दोबारा से आकर हमारी ज़िंदगी को फिर से बेसुकून बना दिया। वो बहुत गुस्से से अपने बाप को कह रही थी, निकल जाओ हमारे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ज़ारा ज़ारो कतार रो रही थी और अपने बाप को कोस रही थी कि तभी ज़ारा की माँ ने आकर ज़ारा को अपने सीने से लगाते हुए कहा, चुप हो जा मेरी बच्ची,
मैं ठीक हूँ। ज़ारा ने ज़ोर से अपनी माँ को अपने साथ लगा लिया। ज़ारा का बाप गुस्से से चीज़ें तोड़ता हुआ अपनी बीवी से कहने लगा, तुमने ये तरबियत की है कि आज ये मेरे सामने खड़ी हो गई है। ये अगले घर जाकर क्या करेगी? तुमने इसे खुद की तरह बनाया है। ज़ारा की माँ बिना कुछ कहे ज़ारा को लिए कमरे में जाने लगी थी और ज़ारा का बाप बाहर चीखता चिल्लाता रहा और अपनी भूख का ढंडोरा पीटता रहा कि मैं कितने दिनों से भूखा हूँ। 2 साल बाद घर आया हूँ और बीवी और बेटी का मुंह ही सीधा नहीं हो रहा। किसी ने मुझे खाने तक का नहीं पूछा, उल्टा मुझे घर में कैद करके न जाने अपने किस यार को मिलने चली गई थी। ज़ारा के बाप की ज़बान बहुत गंदी थी। वो जब अपनी ज़बान चलाता तो ऐसे ऐसे लफ्ज़ अपनी ज़बान से अदा करता था जो कोई शरीफ इंसान ना तो सुन सकता था और ना ही उन लफ्ज़ों को बर्दाश्त कर सकता था। ज़ारा की माँ कमरे का दरवाज़ा बंद किए अपनी बेटी के साथ खामोश बैठी रही। ज़ारा का बाप चीखता चिल्लाता सामान तोड़ता घर से निकल गया। जैसे ही घर में खामोशी छाई तो ज़ारा की माँ समझ गई थी कि वो घर से जा चुका है। अभी ज़ारा ने कमरे का दरवाज़ा खोला और सहन में आकर पूरे घर को देखने लगी और जल्दी से जाकर घर का दरवाज़ा बंद करते हुए अपनी माँ से कहने लगी कि वो चला गया है, आप बाहर आ जाएं। दोनों माँ बेटी कई घंटे अपने बाप के किए हुए जुल्म पर आंसू बहाती रही। अब ज़ारा बुरी तरह से डर चुकी थी। वो एक दिन भी घर में अकेला रुकना नहीं चाहती थी। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं भी आपके साथ घरों में काम के लिए जाया करूँगी, मैं अकेली घर में नहीं रहूँगी। ज़ारा की माँ उससे काम नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन ज़ारा की ज़िद और अपने शौहर के डर की वजह से उसकी माँ ने उससे भी 2 घरों का काम दिलवा दिया था। अब कई दिन गुजर गए थे। ज़ारा का बाप फिर से गायब हो गया था। आज सुबह जब ज़ारा काम पर जाने के लिए उठी तो उसने देखा कि उसकी माँ की हालत काफ़ी ख़राब थी। उसकी माँ शदीद बुखार में तप रही थी। तभी उसने अपनी माँ को घर में आराम करने के लिए कहा और वो अपनी माँ से कहने लगी कि आपके घरों का काम मैं करके आऊँगी, आज आप आराम करेंगी। ज़ारा इतना कहते हुए अपनी माँ को नाश्ता देकर काम के लिए निकल गई थी। आज ज़ारा को सारा दिन लग गया था क्योंकि उसने अपने घरों के अलावा अपनी माँ के घरों में भी काम करने जाना था। ज़ारा को शाम हो गई थी। जैसे ही ज़ारा काम से फारिग होकर घर के लिए रवाना हुई तो उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो तेज़ तेज़ कदम चलती हुई घर की तरफ जाने लगी। उसके दिल में तरह तरह के वसवसे जगा ले रहे थे। घबराई हुई ज़ारा जब घर पहुंची तो उसने अपनी माँ को चारपाई के नीचे गिरे हुए पाया। वो चीखती हुई अपनी माँ को सीधा करके देखने लगी थी। जैसे ही उसने अपनी माँ को सीधा किया था, उसने देखा कि उसकी माँ के मुंह से झाग निकल रही थी और उसकी माँ तकलीफ़ों से लड़ लड़ कर अपने खालिक हकीकी से जा मिली थी। ज़ारा के दिलो दिमाग पर बहुत गहरी चोट लगी थी। वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सब गांव वालों ने ज़ारा को हौसला तसल्ली देते हुए उसकी माँ की तदफीन कर दी। अब ज़ारा इस घर में बिल्कुल तन्हा रह गई। ज़ारा के आगे पीछे कोई नहीं था। कुछ दिन वो अपनी माँ के गम में न ढाल रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों के समझाने पर उसने अपने काम पर जाना दोबारा से शुरू कर दिया। एक दिन ज़ारा सोई हुई थी कि उसने घर में कुछ हलचल होती महसूस की। घर में शोर होने की वजह से उसकी आंख खुल गई थी और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जैसे ही उसने डरते हुए सहन में कदम रखा तो एक ज़ोरदार चीज़ आकर उसके सर में लगी और ज़ारा गिरते ही बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीबो गरीब जगह पर पाया। होश में आने के बाद ज़ारा ने देखा कि वो किसी कोठे पर थी। घुंघरों की आवाज़ें और तबले की थाप पर रक्स करती बहुत सारी लड़कियां कई मर्दों का दिल बहलाती नजर आ रही थीं। ज़ारा बहुत बुरी तरह खौफज़दा हो गई थी। उसकी सांस हलक में ही कहीं अटक कर रह गई। जैसे ही ज़ारा ने उठकर भागने की कोशिश की तो एक बहुत सी भद्दी सी औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके मुंह में पान था। वो पान की पिचकारियां मारते हुए ज़ारा से कहने लगी, ए लड़की,
ऐसी गलती दोबारा मत करना। तुम यहाँ आ तो गई हो, अब यहाँ से जाओगी मेरी मर्जी से। यहाँ से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और भागने की गलती कभी मत करना। जो लड़की मेरे कोठे से भागने की कोशिश करती है, मैं उसकी टांगें तोड़वा देती हूँ। तभी उसके इशारे पर एक लड़की को मेरी आंखों के सामने लाया गया, जो व्हील चेयर पर बैठी थी। उस लड़की की टांगें बेजान थीं। उसकी टांगें उसके जिस्म के साथ लटकती हुई तो दिखाई दे रही थीं, लेकिन उनमें जान बिल्कुल नहीं थी। उस औरत ने ज़ारा को धमकाते हुए बताया कि इस लड़की ने भी तुम्हारे वाले ही गलती की थी। मैंने अपने आदमियों से कहकर पिटवा पिटवा कर इसकी टांगें तोड़वा दी थी। ज़ारा ये मंजर देखकर बुरी तरह से डर चुकी थी। वो ज़ारो कतार रोने लगी थी। तभी उसके लंबे घने बाल उस भद्दी सी औरत ने खींचते हुए उससे कहा, किसके लिए रो रही हो? तेरा बाप तुझे यहाँ छोड़कर गया है, और तुझे यहाँ छोड़ने की मैंने तेरे बाप को बहुत भारी कीमत अदा की है। ज़ारा ने जब ये बात सुनी तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बाप इस कदर जानवर निकलेगा। वो रोने लगी और सोचने लगी कि ये कैसा बाप है जो अपनी सगी औलाद को इस आग में झोंक कर चला गया। वो बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी और अपने बाप से नफरत तो वो पहले भी करती थी, मगर अब उसे मर्द जात से ही नफरत हो गई थी। आज उस लड़की को दुल्हन की तरह सजाकर हॉल में लेकर आना। वो भद्दी औरत अपनी 2 लड़कियों को कहते हुए कमरे से जाने लगी। तभी 2 लड़कियां उसके पास आईं और ज़ारा को सहारा देते हुए ज़मीन से उठाने लगी थी। वो लड़कियां उसके साथ मोहब्बत से पेश आ रही थीं। उन्होंने समझाया कि अगर तुमने ज़ाहिरा बाई की बात ना मानी तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगी। बेहतर यही है कि तुम खुशी खुशी उसकी बात मान लो। जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी वो तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगी, लेकिन अगर तुमने उसे ऐसे तंग करने की कोशिश की तो वो सबके सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़वा देगी। ज़ारा ने अपने आंसू साफ करते हुए हिम्मत से काम लिया और उन लड़कियों के बताए हुए तरीकों को अपनाते हुए दुल्हन की तरह सजने लगी थी। वो दोनों लड़कियां ज़ारा को दुल्हन की तरह सजाकर हॉल में ले गई थी। हॉल में नामी ग्रामी लोग बैठे थे, इस नए हीरे का इंतज़ार कर रहे थे। ज़ारा बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब लोग उसका रक्स देखने के लिए आंखें फाड़े उस पर अपनी नज़र जमाए बैठे थे। तभी ज़ारा ने धीमी आवाज़ में ज़ाहिरा बाई से कहा कि मुझे रक्स करना नहीं आता। ज़ाहिरा बाई ने उसे प्यार से अपने पास बिठाते कहा कि तुम अभी कुछ नहीं करोगी, तुम मेरे पास बैठकर बस यहाँ का मंजर गौर से देखना, जैसे यहाँ की लड़कियाँ करेंगी। तुम्हें ये सब सीखना है। ज़ारा खामोशी से ज़ाहिरा बाई के पहलू में बैठ गई। आज सब लोगों के लिए रेशम का रक्स पेश किया गया। आज कोई भी रेशम को नज़र भर कर नहीं देख रहा था, सबकी नज़र ज़ारा पर थी। ऐसे ही इन हालात में गुजारा करते हुए ज़ारा को यहाँ रहते कई दिन गुजर गए थे। ज़ाहिरा बाई इस लिहाज से बहुत अच्छी थी कि वो किसी भी लड़की को ज़बरदस्ती किसी के पास नहीं भेजती थी। वो लड़की की रजामंदी का इंतज़ार करती थी, चाहे उसके लिए उसे सालों ही इंतज़ार क्यों ना करना पड़ता। ज़ारा को भी इस कोठे पर आए अब साल होने को था, मगर ज़ारा को अभी तक किसी गैर मर्द ने हाथ नहीं लगाया था, और ये सब ज़ाहिरा बाई की बदौलत था। ज़ारा इस कोठे पर रहते हुए यहाँ का लिबास तो ज़ेब तन करने लगी थी। छोटे छोटे कपड़े, हाफ स्लीव्स और बोल्ड लुक इख्तियार करती हुई ज़ारा इस कोठे के रंग में रंगने लगी थी, मगर अभी तक उसकी ज़मीर ने इस बात को कबूल नहीं किया था कि वो उसे बग़ैर निकाह के कोई मर्द हाथ लगा सके। हर रोज़ की तरह आज भी ज़ारा बाई के साथ हॉल में बैठी हुई थी। हॉल में मर्दों का मजमा लगा हुआ था और चंबेली अपना रक्स दिखाते हुए मर्दों का दिल बहला रही थी कि तभी बाहर से आते एक आदमी ने ज़ाहिरा बाई के कान में कुछ कहा। ज़ाहिरा बाई ने ज़ोरदार ताली बजाते हुए पूरा हॉल खाली करवा लिया। सब जगह भगदड़ मच गई थी। ज़ारा के दिल में ये ख्याल आया कि शायद ऊपर वाले ने उसकी मदद के लिए किसी को मसीहा बनाकर भेजा है। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे बचाने के लिए आया है, मगर उसकी सोच गलत थी। शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हॉल के अंदर आता दिखाई दिया।
ज़ाहिरा बाई एहतराम से उसके आगे सर झुकाए खड़ी थी और उससे कहने लगी, सरकार, आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? आप मुझे पैगाम भिजवाते थे, मैं आपके पास खुद हाजिर हो जाती। तभी एक बहुत ही कड़क आवाज़ में वो लड़का ज़ाहिरा बाई को मुखातिब करते कहने लगा कि तुम्हें एक काम कहा था, तुम आज तक मेरा वो काम नहीं कर सकी, तो तुम मेरी खिदमत में क्या हाजिर होगी? ज़ाहिरा बाई ने कहा, सरकार, आपके लिए ये हीरा तराशा है। ज़ाहिरा बाई ने ज़ारा की तरफ इशारे करते हुए कहा। मुर्तसिम ने जब ज़ारा पर नज़र डाली तो वो पहली ही नज़र में अपना दिल ज़ारा पर हार बैठा था। उसने वक्त ज़ाया किए बगैर ज़ाहिरा बाई से कहा कि इस लड़की की कीमत क्या अदा करूं? ज़ारा खूबसूरत तो थी ही, खूबसूरती के साथ साथ ज़ारा अपना एक अलग मेयार रखती थी, क्योंकि उसको आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया था और ना ही ज़ारा ने कभी इस कोठे पर अपना रक्स दिखाते हुए किसी मर्द का दिल बहलाया था। ये सब कुछ जाने के बाद मुर्तसिम ने एक बहुत बड़ी रकम ज़ाहिरा बाई को अदा करते हुए ज़ारा का बाजू पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। ज़ारा ज़ाहिरा बाई के आगे रोई चिल्लाती रही कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मर्द ज़ात से नफ़रत है, मुझे अपने पास ही रखें। लेकिन ज़ाहिरा बाई और बाकी लड़कियों ने उसे समझाया कि तुम खुशकिस्मत हो जो मुर्तसिम तुमसे शादी करना चाहता है, वरना यहाँ पर तो बग़ैर शादी के ही लड़कियाँ बहुत कुछ करती नज़र आती हैं। ज़ारा ने ख़ुद को मजबूत कर लिया था। वो जानती थी कि जिस आग में उसका बाप उसे झोंक कर गया है, वो आग उसके लिए किसी दलदल से कम नहीं थी। अब उसके लिए आगे आगे दलदल ही दलदल थी। मुर्तसिम ज़ारा को बाइज़्ज़त अपने घर ले गया और जाते ही उससे निकाह कर लिया। अब ज़ारा मुर्तसिम की शरीके हयात बनकर उसके साथ ज़िंदगी गुजारने लगी थी। ज़ारा मुर्तसिम से शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सब मर्दों को एक ही नज़र से देखती थी। उसे हर मर्द गलत लगता था। जब कभी वो मुर्तसिम के लिए अपने दिल में जगह बनाने की कोशिश करती तो उसको इस बात का ख्याल आता कि मुर्तसिम भी उन बदनाम गलियों में जाने का शौकीन था। वो समझती थी कि मुर्तसिम भी उसी जगह पर जाकर कितनी लड़कियों की इज्जत से खेला होगा। यही सोचें उसे मुर्तसिम के करीब आने से रोकती थी और मुर्तसिम अपने दिलो दिमाग में ये बात सवार किए हुए था कि ज़ारा को शायद अपनी वही ज़िंदगी पसंद थी। इसी वजह से वो आज तक मेरे साथ घुल मिल नहीं पाई। दोनों के दिमाग में अलग अलग बातें चल रही थी और दोनों ही उन बातों के होते हुए एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे। ज़ारा हर वक्त उदास और सहमी रहती थी और मुर्तसिम उसे देखकर बेइंतहा गुस्सा करता था। मुर्तसिम ने ज़ारा को लेकर अपने दिल में अलग ही वसवसों को जगह दे रखी थी। मुर्तसिम ज़ारा पर तरह तरह की पाबंदियां लगाता था। वो अपने रोब और दबदबे से हमेशा उसे दबाए रखता था। वो खुलकर सांस नहीं ले सकती थी। वो मुर्तसिम की बेजा पाबंदियां और सख्तियों से तंग आ चुकी थी। वो आज़ाद होना चाहती थी, खुलकर सांस लेना चाहती थी, मगर मुर्तसिम उसकी इल्तजा को किसी और ही रंग से देखता था। ज़ारा गुस्से में आकर मुर्तसिम से कहती कि अगर आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं था तो आपने मुझसे शादी क्यों की थी? शादी के मुकद्दस बंधन में बांधकर आज भी अपने दिल से आप मेरे तवाइफ होने का दाग मिटा नहीं सके। अगर आप इतनी हिम्मत नहीं रखते थे तो मुझे निकाह में लाने की क्या ज़रूरत थी? आप अपनी हर हसरत मेरे साथ कोठे पर भी पूरी कर सकते थे। मुझे अपनी बीवी होने का दर्जा क्यों दिया? ज़ारा के बेशुमार सवाल मुर्तसिम को परेशान करके रख देते थे। मुर्तसिम लाख कोशिश के बावजूद भी इस बात को भुला नहीं पा रहा था कि वो उसको अपनी शरीके हयातो बना बैठा था, मगर वो भूल नहीं पा रहा था कि ज़ारा कभी किसी कोठे की जीनत थी। मुर्तसिम सब कुछ जानते हुए भी ज़ारा पर तरस नहीं खाता था। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि ज़ारा बेगुनाह थी। उसके दामन पर किसी किस्म का कोई दाग नहीं था। हाँ, उसके नाम के साथ तवाइफ का लफ्ज़ ज़रूर जोड़ दिया गया था, मगर उसने तवाइफों वाला कोई भी किरदार अदा नहीं किया था। मुर्तसिम ज़ारा की मर्ज़ी के बग़ैर ही अपनी हर हसरत पूरी कर लेता था।
वो अपने शौहर होने का पूरा हक वसूल करता था, मगर अपने दिलो दिमाग से उसे अपनी बीवी तस्लीम नहीं कर पा रहा था। ज़ारा उसके जुल्म से तंग आ चुकी थी। तभी ज़ारा ने मुर्तसिम से कहा कि आप मुझे तलाक दे दें, मैं आप जैसे मर्द के साथ नहीं रहना चाहती, जो रात में तो मुझे अपनी बीवी कबूल कर लेता है, लेकिन दिन चढ़ते ही उसकी नज़र में मैं एक तवाइफ से बढ़कर कुछ नहीं होती। इस बात को लेकर मुर्तसिम और ज़ारा में बेइंतहा झगड़ा हुआ था। मुर्तसिम ने गुस्से में आकर ज़ारा के मुंह पर एक तमाचा दे मारा। ज़ारा को बहुत दुख था। उसके दिलो दिमाग पर मुर्तसिम की हरकतें बहुत असरअंदाज होने लगी थी। वो भी किसी न किसी तरह मुर्तसिम को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। सुबह हुई। मुर्तसिम अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसने ज़ारा से कहा कि आज शाम को घर में गेट टुगेदर है, अच्छे से तैयार होकर हॉल में पहुंच जाना। मुझे किसी किस्म की कोई लापरवाही नहीं चाहिए। ज़ारा ने जैसे ही मुर्तसिम की ये बात सुनी तो पूछने लगी कि कौन आ रहा है। मुर्तसिम ने बताया कि मेरे अजीज़ यार दोस्त शाम की पार्टी में जमा होंगे, इसलिए सारे इंतज़ामात अपनी निगरानी में करवा लेना और किसी किस्म की कोई लापरवाही ना बरतना। ये कहते हुए मुर्तसिम अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। ज़ारा को मौका मिल गया था। अब वो अपने दिल की देरीना ख्वाहिश पूरी करने में कामयाब हो सकती थी। यही सोचते हुए उसने अपने घर के नौकरों से कहकर हॉल को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करवा लिया और खाने पीने का भी इंतज़ाम करवाते हुए वो अपने कमरे में आने लगी। तभी उसकी नज़र घड़ी पर थी, जो उसे इस बात का एहसास दिला रही थी कि उसकी हसरत पूरी होने में कुछ घंटे बाकी थे। ज़ारा मुस्कुराते हुए उठी और अपना एक पुराना बक्सा खोलने लगी। बक्से में से ज़ारा ने अपना एक लिबास निकाला और उसे जेब तन करते हुए तरह तरह के ख्याल अपने दिमाग में सोचने लगी थी। सब लोग हॉल में इकट्ठे होने लगे थे। मुर्तसिम की नज़रें ज़ारा को ढूंढ रही थी और ज़ारा स्लीवलेस शर्ट पहने एक बोल्ड लुक में सीढ़ियाँ उतरती हुई हॉल की तरफ आ रही थी। जैसे ही मुर्तसिम की नज़र ज़ारा पर पड़ी तो वो इसका लिबास देखते हुए शदीद गुस्से में आने लगा। सब मेहमानों की नज़र ज़ारा पर थी। ज़ारा अपनी एक नज़र से सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। ज़ारा की इस हरकत को देखते हुए मुर्तसिम ये तो बहुत अच्छे से जान गया था कि ज़ारा रात का गुस्सा निकाल रही है और उसे नीचा दिखाने की ज़िद में ये सब कर रही है। मुर्तसिम ज़ारा को देखते हुए तकलीफ़ महसूस करने लगा था। उसे ज़ारा से इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ज़ारा भी रिवेंज में ये सब कुछ कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसके इस तरह करने से क्या क्या मसले पेश आ सकते थे। ज़ारा सबका दिल बहलाते हुए अपनी एक नज़र से पूरी महफिल को दीवाना कर रही थी और ये बात मुर्तसिम से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुर्तसिम ने गुस्से से अपना फ़ोन निकाला और किसी से फ़ोन पर बात करने लगा। मुर्तसिम ने ना जाने किसको फ़ोन किया था कि उसके फ़ोन के कुछ ही देर बाद घर की लाइट अचानक से बंद हो गई और कोई तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हुआ और ज़ारा को बेहोश करते हुए छलावे की तरह उसे अपने कंधे पर डाले गायब हो गया। इस वाक़े के कुछ देर बाद लाइट आ गई थी। हॉल में भगदड़ मच गई थी। मुर्तसिम ने सबको घर से जाने के लिए कह दिया था। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। कोई नहीं जानता था कि ज़ारा अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। मुर्तसिम हॉल में बैठा एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसने अपने नौकर से एक कप चाय का मांगा। गरम गरम चाय मुर्तसिम के सामने पेश की गई। मुर्तसिम सिगरेट पर सिगरेट पीते जा रहा था। शायद वो खुद से लड़ रहा था। वो अपने अंदर आते हुए ख्यालात से भरपूर जंग कर रहा था। तभी चाय पीते हुए मुर्तसिम ने गुस्से से सिगरेट तोड़ा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उसने सब नौकरों को भी छुट्टी दे दी थी। मुर्तसिम बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। ज़ारा की आंख अगले दिन दोपहर में जाकर खुली थी। दोपहर में होश में आने के बाद ज़ारा ने अपने जिस्म पर ओढ़े कपड़ों की तरफ गौर किया
तो वो अपना सर पकड़ते हुए अपने बिस्तर से उठने लगी। वो अपना लिबास देखते हुए हैरान थी कि तभी उसकी नज़र उसके साथ लेटे मुर्तसिम पर पड़ी। उसने मुर्तसिम को देखते हुए एक ज़ोरदार चीख निकाली थी कि मुर्तसिम ने उसे सख्ती से पकड़ते हुए कहा, दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोच लेना। वो सख्त लहजे से ज़ारा से कहने लगा कि ये बात याद रखना कि जब तक तुम मेरे निकाह में हो मैं दोबारा तुम्हें ऐसे लिबास में ना देखूं। अगर मैंने तुम्हें दोबारा ऐसी कोई हरकत देखी जो मुझे गवारा ना हुई तो ये बात याद रखना, मैं तुम्हें तुम्हारी हसरतों के साथ उसी जगह पहुंचा दूंगा जहां से मैं तुम्हें उठा कर लाया था। मुर्तसिम के मुंह से इतनी बात सुनते ही ज़ारा की आंखों में आंसू भर आए थे। ज़ारा बिस्तर के करीब ही ज़मीन पर बैठ गई और ज़ारो कतार रोने लगी। उसने ललचती हुई आवाज़ में मुर्तसिम से माफ़ी मांगी और उससे कहने लगी, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, लेकिन आप मुझे दोबारा उस कोठे पर कभी मत भेजिएगा। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, मैं आपके साथ यहीं पर रहना चाहती हूँ। उसके दिल में बहुत तकलीफ़ थी और ज़बान पर वो तकलीफ़ ज़ाहिर हो रही थी। ये वो लम्हा था जिसने मुर्तसिम के दिल पर बहुत बुरी तरह से वार किया था। मुर्तसिम उसकी लरसती हुई आवाज़ से पिघल चुका था। उसका दिल ज़ारा के लिए मोम हो चुका था। उसने ज़ारा की हर कोताही को माफ़ करते हुए ज़ारा को ज़मीन से उठाया और बिस्तर पर बिठाते हुए उससे कहने लगा, मुझे भी अपने किए पर शर्मिंदगी है। मैं भी तुमसे अपनी हर गलती, अपनी हर कोताही की, अपने हर जुल्म की माफ़ी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच समझकर तुमसे निकाह किया था, मगर मेरे दिलो दिमाग पर यह बात बुरी तरह से सवार थी कि तुम जिस जगह से आई हो उसी जगह तुम्हारी कई मर्दों के साथ सेटिंग होगी। मेरे दिमाग में यही बात थी कि तुम इस कदर खूबसूरत हो, ये कैसे मुमकिन है कि किसी ने तुम्हें छुआ तक ना हो। ज़ारा मुर्तसिम की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और लगातार आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मुर्तसिम से कहने लगी, आप उस कोठे के उसूल जानते हैं। जब तक लड़की खुद रजामंद नहीं होती, ज़ाहिरा बाई किसी और को उसके करीब नहीं जाने देती। ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे 1 साल हो गया था उस कोठे पर आए हुए, और ये जुल्म मेरे साथ किसी गैर ने नहीं, मेरे अपने बाप ने किया था। मैं अपनी मर्जी से उस कोठे पर नहीं आई थी। मेरा बाप मुझे चंद पैसों के एवज़ बेच कर चला गया था, मगर मैंने अभी तक अपनी रजामंदी ज़ाहिरा बाई को नहीं दी थी, क्योंकि मैं वो काम कभी कर ही नहीं सकती थी जिस काम के लिए वो जगह बनाई गई है। ज़ारा मुसलसल रो रही थी और अपनी बेगुनाही की दलीलें दे रही थी। मुर्तसिम अपने किए पर शर्मिंदा था। उसने ज़ारा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उससे कहने लगा कि आज के बाद मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें ज़िंदगी में किसी भी तरह की तकलीफ़ ना पहुँचाऊँ। मुझे माफ़ कर देना। मेरे जहन में गलत बातों ने घर कर लिया था। यही वजह थी कि मैं तुम्हें दिल से कबूल नहीं कर पा रहा था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये वो आखिरी दिन था जब मुर्तसिम और ज़ारा के दरमियान झगड़ा हुआ था। उसके बाद ज़ारा और मुर्तसिम ने अपना अपना माजी भूलते हुए एक दूसरे को दिल से कबूल कर लिया था। मुर्तसिम ने ज़ारा को दुनिया जहान की सहूलतें मुहैया की थी। वो उसकी हर सहूलत, ख्वाहिश और ज़रूरत का ख्याल रखता था। अब मुर्तसिम दिलो जान से ज़ारा पर जान निछावर करता था और ज़ारा भी दिल से मुर्तसिम को अपना शौहर मान चुकी थी। वो हंसी खुशी उसके साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। उसने भी मुर्तसिम की हर ज़रूरत का ख्याल रखा। उसकी हर ख्वाहिश को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। उसके जीने का एक ही मकसद था कि वो मुर्तसिम की खुशी के लिए जीने लगी थी। ज़ारा अक्सर अपने माजी को याद करती तो रो पड़ती थी और फिर अल्लाह के हुजूर सजदे में जाकर
उसके दिए गए तोहफे का शुक्र अदा करती। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसने कठिन मराहिल से गुजारते हुए ज़ारा की ज़िंदगी को खूबसूरत बना दिया था। वो अपने रब के उस वादे को याद करती जो उसने अपने बंदे से किया है। अल्लाह कहता है कि बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। ज़ारा अल्लाह के इस वादे को याद करती और अल्लाह का शुक्र अदा करती और कहती कि बेशक तू अपने वादे से गाफिल नहीं है। अल्लाह ने मुर्तसिम और ज़ारा को 2 जुड़वां बच्चों से नवाजा। मुर्तसिम और ज़ारा अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।